जब हमने रूरल एरियाज़ में काम करना शुरू किया, तो हमारे को ये पता लगा कि देयर आर लॉट ऑफ इनोवेशंस बट दे नीड हैंड होल्डिंग। जो एंड उसका आइडिया है, उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होता कई बार। तो उसके लिए भी हमारे को उनको स्टार्टअप्स रजिस्टरिंग फॉर दैट इवेंट, पैन इंडिया उसकी विजिबिलिटी दे रहे थे। हमने उसका नाम रखा था भारत। माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो अ बिजनेसमैन, तो एक अच्छी स्टेबल लाइफ थी हमारी। व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी, तो आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी जो आप। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव पुंडीर एंड आज योर एग्री स्टोरी की इंक्यूबेटर सीरीज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचि सिंगला, हु हैज़ बीन द डायरेक्टर ऑफ ACIC राइस CGC लांड्रा एंड नाउ शी इज़ डूइंग हर ओन स्टार्टअप। आज हम उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी प्लस उनकी इंक्यूबेटर जर्नी के बारे में जानेंगे। सो वेलकम मैम। Thank you so much, Abhinav, and it is pleasure to be there on your show. And ma'am, as always, before we start, could you please tell us something about yourself? Okay, just giving a brief introduction about myself. My name is Dr. Ruchi Singla. You have already introduced me. And I am Director and CEO of RAS Intellect Solutions Private Limited. Apart from that, I am also Director of ACIC RISE, which is a Section 8 company. And I have come up with my own venture, which is RAS Intellect Solutions Private Limited. And right now working on the growth of my own venture, and planning to volunteer for some of the needs of the society. This is what I plan it to moving further, which I will be doing, जहाँ पे we can benefit the community and uplift the society. That's very nice, ma'am. And you're speaking about your venture, but before your venture, everybody, me, the audience, we would love to know more about your previous venture. So ACIC राइस, वहाँ पर आपने अपना करियर जो इंक्यूबेशन में स्टार्ट किया था, उससे पहले आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था एंड हाउ यू एंडेड इन द इंक्यूबेशन इकोसिस्टम, तो उसका आप एक बार हमें थोड़ा ओवरव्यू दीजिए मैम। Okay, so I started with this education journey from 2003. So there was one of the college where I started with my job as a faculty, and then I came across Chandigarh Group of Colleges, which was a growing college at that time, and they had this engineering and MCA courses running ईयर in year 2000 2003. 2003 2003 की बात है ये. And I gave my interview over here and got selected. for which designation? उस टाइम पे we had lecturers. Okay, so you joined as a teacher. I joined as a teacher and just started my journey from teaching the engineering students, second year engineering students there. And we had this electronics and communication engineering department, which was set up by me only over there. So CGC में setup ही आपने हाँ जी, so we were two people, and all the things over there, जो भी start किया था, the labs and all, we were the one who were the pioneers for that. We started with electronics and communication engineering department, and slowly and steadily, मेरी promotion हुई from lecturer to assistant professor to associate professor, upgrading myself, knowledge maybe. Degrees में साथ में, because when I joined I was BTech in electronics, because at that point of time कुछ भी इस तरह का rule नहीं था कि assistant professor you have to have like MTech. तो bachelors थे, तो bachelors में भी if we had experience we were allowed to work as a lecturer and assistant professor, depending upon the number of years of experience. And I did my MTech staying in the college. Then I did my PhD from Thapa University. अच्छा And then after that, I was head of department for electronics and communication engineering for 5 years. After which I took a break because I had to go to Canada Okay. for settling my kids, and came back, worked as associate director with Chandigarh University for some time. अच्छा And after that, CGC wanted to set up a research department. okay, that was in year That was in year 2018. 18. Yeah. So 2003 के बाद 15 साल have आप worked 5 with- साल HOD भी रहे हैं हाँ, हाँ. and then after 2018 Yeah. फिर
I started with the new journey of setting up the research department because that was one thing जो कि अभी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में 2018 की बात कर रही हूँ तो इट वाज अ न्यू बज़वर्ड सेटिंग अप द रिसर्च डिपार्टमेंट इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को फिर भी फंडिंग्स मिल रही हैं हर चीज़ में दे आर बीइंग गिवन रिसोर्सेज असिस्टेंस बट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस टू कम अप विद न्यू आइडियाज एंड देन टू इम्प्लीमेंट इट स्पेंडिंग देयर ओन मनी दैट्स अ वेरी न्यू थिंग एट दैट टाइम दैट वाज अ वेरी न्यू थिंग कहीं ना कहीं पे द मैनेजमेंट हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव जहाँ फॉर सेटिंग अप द रिसर्च डिपार्टमेंट एंड एक हमारे को दे हैड ट्रस्ट इन अस वेयर दे जस्ट टोल्ड कि आपने एक रिसर्च डिपार्टमेंट सेटअप करना है एंड वी वर आफ्टर दैट कि किस तरह से सेटअप होगा एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन एंड अ सिंगल पर्सन who was given this responsibility of setting up a research department. I gave my proposal in front of the management, and then the lockdown thing happened. And before that, we had applied for ACIC grant. So, when you say research center, are you referring to incubation center or research in academics? हमारा जो विजन था फॉर सेटिंग अप अ रिसर्च सेंटर इट इंक्लूडेड publications, research, submitting the research proposals, incubation center, center of excellence. Yeah. तो जो वो एक होता है ना वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी रिसर्च काइंड ऑफ थिंग विच इज हैपनिंग इन अ यूनिवर्सिटी और इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सो दैट वाज आवर विजन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड ACIC की एप्लीकेशंस निकली थी उस टाइम पे एंड नीति आयोग वाज वेरी एक्टिव इन promoting the incubation thing in the academic space and that was the time we got the opportunity जहाँ पे हमने एक proposal submit किया and we got that during the lockdown and then the journey started. So, ma'am, ये question I would like to ask from the perspectives of teachers, right? आप एक रिसर्च डिपार्टमेंट सेटअप कर रहे थे तो एक अपॉर्चुनिटी निकली ACIC के कॉल्स ओपन हुए वी वुड से दैट सो फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव आप HOD रहे हैं आप एकेडमिशियन रहे हैं आप वो जो एक एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए ग्रांट्स लाने वाला था क्योंकि हमारा पिछला जो एपिसोड था इस सीरीज़ का डॉक्टर आकृति के साथ उसमें शी वॉज ऑलरेडी पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन दैट वाज फाइनलाइजिंग दोज ग्रांट्स जैसे RQI रफ्तार उन लोगों ने निकाला तो हमने वो पर्सपेक्टिव देखा कि जब ये बनती हैं तो कैसे क्या केओस क्रिएट होता है बट एक नए इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के टीचर के मन में क्या तब आया था जब उन्होंने ग्रांट्स के लिए अप्लाई किया एंड कैसे आपने वो जब फॉर्मुलेट किया होगा पूरा प्रपोजल तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखी और आज के जो इनक्यूबेटर्स या फिर फैकल्टीज़ कर रहे हैं सब वो क्या क्या चीज़ें इन चीज़ों को मन में रख सकते हैं जब दे ट्राई ओके तो जब मैंने ये हमने इंक्यूबेशन सेंटर की एप्लीकेशन देखी और उससे पहले जब भी हमने रिसर्च सेंटर की बात की थी एंड आई हैड वर्कड विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पे स्टूडेंट्स वर वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट्स दे हैड आइडियाज़ पेटेंट फाइलिंग वाज अ न्यू थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नो दैट तो एक अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच थी हर एक जो स्टूडेंट का एक आइडिया को लेके आना उसके ऊपर काम करना एंड व्हाट नेक्स्ट तो ये एक चीज़ थी कि उसका एक सॉल्यूशन नहीं था रोड मैप किसी के पास रोड मैप नहीं था एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोपोर्शनेट से काम हो रहा था एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन वी थॉट दैट देयर शुड बी समथिंग इन द इंस्टीट्यूशन जो कि इस अप्रोच को हैंड होल्ड कर सके जो इस अप्रोच को मेंटोरशिप कर सके एंड एकेडमिक्स को थोड़ा शिफ्ट दे स्टूडेंट्स को यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट एकेडमिक्स अभिनव यू माइट हैव फेस दीज थिंग्स कि एकेडमिक्स में इट्स द परसेंटेज it's the how the student performs academically that is what is taken into account, right? But when we talk about projects, when we talk about ideas, when we talk about entrepreneurship, तो उसमें आई थिंक देयर इज नो बार कि हम वहाँ पे एजुकेशन नहीं देखते. आई वांटेड टू क्रिएट अ स्पेस एंड अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 to 3 members who were a part of my team जहाँ पे
the students were allowed to fail, they were allowed to pivot, and then they were allowed to thrive, you know. And that is what we started with. एंड इसी को ही हमने अपना एक विजन कह सकते हैं या मिशन बना के वी स्टार्टेड विद दिस ACIC जर्नी. या एंड योर सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट लाइक हमने प्रपोजल के लिए हाउ डिड वी व्हाट वी वर्कड अबाउट, हमने क्या काम किया टू. क्या कंफ्यूजन रहा होगा तब, क्योंकि जैसे आपने अभी रखा कि स्टार्टअप्स हैं, मतलब आइडिया थे, उनको एक रोड मैप बनाना था, एक रास्ता आपको तैयार करना था. उसके लिए बीइंग कमिंग फ्रॉम अ एक्सपीरियंस बैकग्राउंड, आपने सोचा कि हाँ यार मैं बच्चों को ऐसे गाइड कर सकती हूँ, आर टीम कैन हेल्प इन दैट वे. बट देन टू राइट इट ऑल ऑन पेपर and to project and present it as a business plan, because incubation is also a business, right? So how did it felt, and what all difficulties you guys faced? So the first thing was we looked into this ACIC proposal, and इसमें जब हमने check किया, they were focused on helping the grassroots innovators. Right. And कहीं ना कहीं पे we, and that was lucky part for us क्योंकि we belonged to tier 2 city. And ACIC अटल इनोवेशन मिशन सपोर्ट कर रहा था ग्रास रूट इनोवेशंस को, दैट टू इन द रूरल एरियाज. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग फ्रॉम वेयर वी, हमारे को ये पता लग गया वी आर एलिजिबल फॉर द ग्रांट. देन वी स्टार्टेड विद द ग्राउंड वर्क. इसमें क्या है, इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर प्लानिंग, इट रिक्वायर्स अ सर्वे, इट रिक्वायर्स अ फीडबैक ऑल्सो, जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नेंस स्ट्रक्चर, व्हाट शुड बी योर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, आपके SOPs क्या होंगे, आपके KPIs क्या होंगे, फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी क्या होगी मूविंग फॉरवर्ड. The बिकॉज business plan. exactly, because we were going to set up a Section 8 company, and after 5 years that company should be financially sustainable. और what we thought कि तीसरे साल में हमारे पास इतना सस्टेनेबल सिस्टम होना चाहिए so that we can support, apart from the grassroots innovators, we can support the self-help groups as well. Because when we started working with the villagers, जब हमने रूरल एरियाज में काम करना शुरू किया, तो हमारे को ये पता लगा कि देर आर लॉट ऑफ इनोवेशंस, बट दे नीड हैंड होल्डिंग, एंड कहीं ना कहीं भी उनको फंडिंग सपोर्ट भी चाहिए. राइट. या वो एक कहावत है ना कि इंडिया में हर नुक्कड़ पे एक आइडिया तो है. एग्जैक्टली. हर घर में कोई एंटरप्रेन्योर बनने बैठा हुआ है, या कोई हाथ पकड़ के बाहर लाए और फंडिंग दे तो Exactly. कुछ गाइडेंस मिले. Yeah. So this is how we started policy making, mentorships, list of mentors, startups को किस तरह से incubate करना है. We started with 2 programs, Launchpad and Envision program. And then moving forward, startup की journey क्या रहेगी, कितने months तक startup हमारे पास रहेगा, what all facilities can we provide them. And the main part was collaboration, जहाँ पे how we are going to collaborate with the ecosystem around us, collaboration with state government. Networking would be the better. Yeah, because we'll get a good visibility, and we can handhold the startups coming from the rural community, जो कि startup, for example, Startup Punjab के साथ connected है, because Startup Punjab is doing a good work. Then other organizations, Punjab State Council of Science and Technology, central government के जो और associations हैं, we started connecting with them, and धीरे धीरे we got a very good visibility. क्योंकि अगर इंक्यूबेटर स्पॉटलाइट में है तभी वो अपने स्टार्टअप्स को पकड़ के स्पॉटलाइट में ला सकता है. Exactly. If the incubator is unknown to people, to the ecosystem, then the startups wouldn't be able to get the maximum benefit at least. Yeah, I agree to that. जो आपकी जर्नी रही, आई थिंक ACIC stands for अटल कम्युनिटी Innovation Center. इनोवेशन. ACIC is Atal Community Innovation Center, and most of the startups, when they join ACIC, they are at the ideation stage. And जहाँ पे हमारे पास एक रॉ आइडिया आता है विद द पिच, एंड उसको हम 3 months देते हैं. यू स्टार्ट
preparing your pitch, and we जहाँ पे हम mentorship provide करते हैं from different pool of mentors which we have. And moving forward, after हम generally 11 months के लिए support करते हैं, and some of the startups they need extra time because they are deep tech startups working on their prototypes and all. And once they have their prototype ready, then most of the startups are forwarded to. When you were in ACIC Rise being a director, so you used to train them, mentor them for creating the pitch deck. तो आपने उसमें 2 प्रोग्राम का भी नाम लिया, लॉन्च पैड एंड सेकेंड वन वॉज एनविजन. तो उसमें क्या डिफरेंस है, और जब आपने वो दोनों प्रोग्राम लॉन्च किए तो आप लोगों के मन में क्या था कि मतलब क्या एक इंक्यूबेटर के मन में कभी ये आता है कि मेरा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनेगा, या फिर एक इंक्यूबेटर के मन में एज अ मदर ये आता है कि एटलीस्ट ये चलना सीख जाए, फिर देखते हैं यूनिकॉर्न बनेगा नहीं बनेगा. So this is where ACIC comes into play. That was what I was mentioning, Abhinav, कि हमारे पास जो ideas आते थे, they were at the ideation stage. तो वहाँ पे some of the budding entrepreneurs, I would say, they come to us with an idea. Could be a student as well, right? Could be a student as well. Could be a student. कोई एक entrepreneur भी हमारे पास आ सकता है. जहाँ पे they needed support from us, you know, support in terms of कि जो उसका idea है उसको clarity of thought नहीं होता कई बार. तो उसके लिए भी हमारे को उनको mentors के साथ meetings करवानी पड़ती हैं. कैनवस बनाने के लिए, एटलीस्ट समझने के लिए. And it's not a one man show. It has lot of people behind. एक entrepreneur को बनाने के लिए, एक startup को बनाने के लिए, because we have pool of mentors with us, and sometimes mentors based on their experience give us this feedback that this startup is going to thrive. तो वो होता है हमारे साथ भी. और कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो हमारे को मेंटोर्स कहते हैं, दे नीड एक्स्ट्रा यू नो नर्चरिंग, एंड इनको इस तरह से आप नर्चर कीजिए, एंड जो अच्छा अभी थ्राइव करने के बिल्कुल उस पोजीशन पे है, तो उनको किस तरह से और विजिबिलिटी देनी है. सो it's all a team effort where the pitch is presented to the committee, and they take a decision that yes, this is going to incubate. And you were mentioning about Launchpad and Envision. So अगर आप नाम देखें Launchpad, so giving startups a launchpad, a platform where the startups can enter, giving the budding entrepreneurs a platform where they can enter into the startup ecosystem. एक सीड डालने वाला जो प्रोग्राम है, दैट्स योर लॉन्च पैड. And once the startup have their pitch ready, have the thought of clarity, and they are actually confident that yes, this is what we want and this is the prototype we need to develop, और उनको पता लगता है about the startup ecosystem, they have the mentor attached to them, then they are into the Envision program, and where we are confident that yes, ये जो startup है एक exit लेगा अच्छे वे में यहाँ पे, तो उनको हम mature होगा. Envision में डालें. Correct. Yeah. So जब हम एक इंक्यूबेशन सेंटर की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू एनीबडीज माइंड इज फंड्स, ग्रांट्स. तो आपने जब सेटअप किया, ACIC वाज वन ऑफ द recognition you guys received. What other grants you guys have, and किसके बाद कैसे, what was the order of getting them, and what were the challenges that you faced as an incubator? It was 5 crores of grant, and 50% by the management and 50% by the government of India. एंड इसमें अभी हमारा जो बिगेस्ट चैलेंज था कि हमारे को लॉकडाउन के टाइम ये ग्रांट मिली, एंड हमारी जो मेंटरिंग हो रही थी, एंड डॉक्टर उन्नत पंडित मेंटोर थे उस टाइम पे. ही वाज द प्रोग्राम मैनेजर फॉर नीति आयोग. अच्छा. एंड ही वाज द वन हु वाज मेंटरिंग ग्रुप ऑफ ACICs which were selected. एंड हमारी रोज एक वर्चुअल क्लास होती थी, एंड वर्चुअल क्लास में देयर वर लॉट ऑफ मेंटोर्स जिनको बुलाया जाता था टू टीच अस अबाउट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वर लाइक मी एकेडमिशियंस थे. टीचर वो हाँ, टीचर माइंडसेट था हमारा, एंड उसको ट्रांजिशन करना टू एक स्टार्टअप हेड बिजनेस पर्सपेक्टिव में. सो दैट वाज वन थिंग विच वाज गिवन टू अस बाय नीति आयोग. उन्होंने हमारे को मेंटोर किया बहुत अच्छी तरह. एट दैट टाइम वी गॉट एम्पल टाइम फॉर द रीज़न लॉकडाउन था,
एंड क्लासेस चल रही थी हमारी वर्चुअल एंड उसके बाद वी स्टार्टेड विद आवर जर्नी ऑफ लाइक इंक्यूबेशन सेंटर के लिए द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट चैलेंज विच वी फेस्ड वर दैट किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि प्राइवेट कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेंटर थ्राइव करेगा वेरी ट्रू। या चलेगा एंड एवरी वन वॉज ऑफ द ओपिनियन कि ये लोग फंडिंग नहीं देंगे एक वो माइंडसेट माइंडसेट है इस तरह का बना डिलेमा हुआ सबके मन में है। करेक्ट एंड धीरे धीरे वी स्टार्टेड विद जो हमारे अपने स्टार्टअप्स थे 2 स्टार्टअप्स थे हमारे हमने वहाँ से स्टार्ट किया एंड समवेयर उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया उन दोनों स्टार्टअप्स ने एंड हमने प्रोटोटाइप में उनको सपोर्ट करना शुरू किया किस तरह से एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग टू देम एंड धीरे धीरे करके हमारे पास कुछ बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ने आना शुरू किया आई वुड नॉट से स्टार्टअप्स बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जिनको लग रहा था कि अभी शायद हमारे को कहीं और सीट नहीं मिलेगी लेट्स लेट्स ट्राई इट ओवर हियर रास्ता तो दिखेगा। कुछ रास्ता दिखेगा देन वी स्टार्टेड विद हमारा मेन जो व्हाट आई कैन सी एडवांटेज ये रहा कि हमने हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ की वी हैड अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर एवरीथिंग एंड फ्रॉम फ्रॉम द पूल ऑफ मेंटोर्स एडवाइजरी बोर्ड जो हमने अपने साथ एसोसिएट किया था हम टाइम टू टाइम उनसे फीडबैक लेते रहे एंड उस फीडबैक ने हमारे को बहुत हेल्प किया फॉर आवर ब्रांड बिल्डिंग जो हमने ACIC की ब्रांड बिल्डिंग की है वी स्टार्टेड विद आउटरीच इवेंट्स वी स्टार्टेड विद लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड विजिबिलिटी शुरू हो गई हमारी अच्छी विजिबिलिटी बन गई एंड आइडियाथॉन्स कराए हमने स्टार्टाथॉन्स कराए कुछ स्टेट लेवल इवेंट्स होते थे वेयर वी यूज टू पार्टिसिपेट एंड धीरे धीरे करके वी गॉट गुड विजिबिलिटी स्टार्टअप्स ने हमारे को अप्रोच करना शुरू कर दिया ट्रस्ट बनाए। या एंड देन वी गॉट दिस ग्रांट स्टार्टअप इंडिया सीड फंड ग्रांट उसके बाद आपको SIS yeah then it was like we were on the pan India level पे हमारा स्टार्टअप आ गया there were a lot of startups जो कि हमारे पास आए राजस्थान से तमिलनाडु से we got call from Kerala एंड एक आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने हमारे साथ इंक्यूबेट किया अपनी कंपनी को एंड स्लोली एंड स्टडीली वी स्टार्टेड एंड नाउ वी आर अ फुल फ्लेज्ड established incubation center and you go anywhere you name our startup and everybody knew सबको पता है हमारे yes, incubation center का या दैट्स ट्रू क्योंकि प्राइवेट कॉलेज पे ट्रस्ट करना और फिर उससे जो फंडिंग मिल रही है सबसे बड़ा from an entrepreneur's perspective the biggest problem or the biggest dilemma we face is कि we are going to an incubator but क्या वो support करेगा करेक्ट क्या वो फंडिंग दिलाएगा विदाउट बीइंग बायस्ड क्योंकि देयर इज अ थॉट प्रोसेस कि यार शायद फंडिंग दिला के दे वुड आस्क फॉर समथिंग या फिर फंडिंग दिला के दे मे हैव देयर ओन प्लान्स फॉर द स्टार्टअप इन द माइंड एब्सोल्युटली सो व्हेन nowadays when we talk about ACIC RISE people say ki haan yaar they help they provide office space you guys have an amazing space in the building and then you provide mentorship and funds आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिए हैं so ACIC आया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड आया एंड देन उसके बाद स्टार्टअप पंजाब सीड फंड के लिए आपके स्टार्टअप्स हाँ स्टार्टअप्स हमारे जो हैं स्टार्टअप पंजाब का जो सीड फंड है वो हमारे अबाउट I think 7 startups have received the Startup Punjab seed fund, and thanks to Startup Punjab for that. They have been hand-holding us for this seed funding. Then we got a grant from Department of Science and Technology. DST से grant मिली जिसमें हमारा जो काम था about startups वो कहीं ना कहीं पे ग्रो किया बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट थ्रू दैट प्रोजेक्ट वी हैव टू कनेक्ट विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो बिल्कुल ही रूट लेवल से हमने स्टार्टअप्स को देखना शुरू किया बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो जो उनके लेवल पे काम हो रहा है वहाँ पे एक मेंटरिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उनको हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उनके पास टैलेंट बहुत है जो कि बाहर लेके आने की रिक्वायरमेंट है लोगों को पता लगे उसकी रिक्वायरमेंट है एंड दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड विद दिस ग्रास रूट इनोवेशन just observing the gaps of the society and working on that gaps. अभी मेरे पास जो स्टार्टअप्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वी डोंट टेल देम कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनो वी ऑलवेज टेल देम you have to be a change maker you know where you have to change the
perspective of the society, what they think about an entrepreneur. Yeah, that's the impact. Yeah, that is the impact. नहीं, दैट्स वेरी ट्रू मैम। और जब आप लोगों ने ग्रांट्स लाई, आप लोगों ने स्टार्टअप्स को हेल्प करना स्टार्ट किया, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट 2021 2022 राइट? सो हमने एक 2 डेकेड की जर्नी आपकी जान ली, 2003 से लेके 2023 तक कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई। अब द मेन क्वेश्चन अराइजेज इज हाउ डॉक्टर रुचि डिसाइडेड टू jump the ships, you can say, or promote herself from being the incubator to being the startup entrepreneur. So how did that came to your mind, and what all qualifications you have? So your company, it's for IP intellect, right? Yeah. So what's your qualification for it, and how did it occur to you ki yaar now I should do the thing I have been training people for? So how did it? So 2 years back, I was in Canada. I started my IP journey from there. वहाँ पे I cleared one exam for Certified Canadian Patent Administration का exam होता है, which is conducted by Intellectual Property Institute of Canada. So only 11 people around the world were able to clear that exam, and I was one of them. तो वहाँ से कहीं मुझे एक क्लिक मिला कि yes, I can. आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बैकग्राउंड से आईपी वाले एग्जाम क्लियर करने की प्रिपरेशन कैसे आई दिमाग में? मतलब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, फिर I was preparing for it. मन में था, एक लक्ष्य आपने रखा हुआ था? I wanted to do something which different. Yeah, that was one thing I have in my mind कि ठीक है, आपने रिसर्च पार्ट भी कर लिया, फैकल्टी भी अच्छे बन गए, एचओडी भी हो गया, डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर आई वाज विद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एंड व्हाट नेक्स्ट? I wanted something which can upgrade my knowledge, and which can also give me some kind of a shift from my academic career. I was looking for that. And so I cleared this exam and applied over there in one of the company. I got selected over there. And just because of relocation, I was living in Vancouver. So just because of relocation, I was not able to join over there. Came back either, started with my ACIC journey again over here. But ACIC, maybe I was working with the entrepreneurs. Right. And एक था मन में कि I want to be an entrepreneur where I could transform the theoretical knowledge into, real world situation problem. बिजनेस बना Business, सकती हूँ। yeah. And that was where the journey started. And and ACIC Rise, it's somewhere now, it's in the auto mode kind of a thing, because the team over there is capable enough to handle the incubation center. So I started with my own journey. Started with the SARIAS Intellect Solutions Private Limited, and yeah, it's going well now. दैट्स वेरी कमेंडेबल मैम। सो अभी आप लोगों ने एक एआई एंड ड्रोन एक्सपो भी कराया था, राइट, सीजीसी लांड्रा में। सो वाइल आरएएस का काम चल रहा था, वाइल यू वर हैंडलिंग द स्टार्टअप्स, एंड देन केम द एआई एंड ड्रोन एक्सपो। सो व्हेन डिड आरएएस गॉट रजिस्टर्ड, एंड फ्रॉम working as a director, how you were able to take out time for all of them? During the AI and Drone Expo, we were working 24/7, because it was a big event. I think you have heard about AI and Drone Expo. It was a big event, and हमारे लिए it was a new thing, जहाँ पे international guests were coming and lot of startups registering for that event. Pan India उसकी visibility दे रहे थे. हमने उसका नाम रखा था भारत AI and Drone Expo, for the reason somewhere we wanted to encash pan India startups over there. We were giving the funding to the startups, and it was a 2-day event जो हमने किया था. And उस time पे my total जो thought process था, it was only कि मेरा AI and Drone Expo का जो event है, that should give a very good visibility to ACIC Rise. And after that, in the month of October, I started planning for my own venture.
Post that, I started planning for my own venture, looking for registering my company, because I know each and everything, because this is what I do at ACIC Rise, and registering my company, and looking for an office space, and then things just went as per the plan, and now I am sitting in my own office right now, being your own boss. being my own boss. Yeah. Guys, that's a learning for all of us. The task we have at our hand should be our topmost priority. Correct. What did you take any grant that were supposed to go to a startup? And ऐसा भी कभी हुआ कि कोई बच्चा आया हो कि मैम आई वांट टू डू माय स्टार्टअप एंड आपने कहा नहीं यू शुड वर्क फॉर मी, तो ऐसा कुछ हुआ कभी? Never ever in my life I have done that. Uh, when I was working for ACIC Rise, I was totally working for ACIC Rise, and that, what I can say, that is my second home, because I have been associated with that institution for 24 years, and it's a long journey. 24 साल की जर्नी, it's a big, बहुत बड़ी जर्नी है, एंड वहाँ पे जो ग्रांट्स मिली, they were for ACIC Rise, and I have never thought of कि वहाँ की जो ग्रांट है उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया जाए, दो जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, जो मेरा नेटवर्क है, दैट इज़ वन थिंग। That's your personal. जो मेरा वो एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे इस कंपनी को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा, एंड कोई भी स्टार्टअप मेरे पास आया है, या अभी भी कोई मेरे पास स्टार्टअप आता है, तो I always tell them that that is a place where you will get the 100% incubation facility, because everything is हमने खुद बनाया है वहाँ पे सारा कुछ. I started with my own company, तो उस नेटवर्क ने मुझे हेल्प किया जहाँ पे I wanted कंपनी इनकॉर्पोरेशन, सब नेटवर्क काम आता है. एक network- मेंटर्स network- जहाँ वहाँ पे थे उन्होंने भी Yeah. आपको थोड़ा गाइड किया होगा. समटाइम्स आई गो टू सम इवेंट्स जहाँ पे आउटरीच एक्टिविटीज होती हैं, तो वी आर द सेम पीपल स्टैंडिंग ओवर देयर. हाँ, बट अभी क्या है, आई हैव टू गिव माई विजिटिंग कार्ड टू एवरीबडी, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, दैट Again. yes, yeah, introducing myself again, and I'm ready for that. I represent myself as a director, RAS Intellect, and I'm ready to introduce myself again. I'm ready to sit at the back seat, because when you are starting a new company, तो आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी जो आपको एज ACIC राइज डायरेक्टर की मिली है, बट आई एम रेडी फॉर दैट, बिकॉज दैट इज वेयर द चैलेंजेस कम इनटू प्ले. क्योंकि पहले आप स्टेज के ऊपर थे करेक्ट. और अब आप ऑडियंस में हमारे जैसे स्टार्टअप्स के साथ बैठे हो. करेक्ट. मे बी दे विल रिकग्नाइज योर फेस कि रुचि मैम कैसे हैं आप, बट पिच आपको भी देना पड़ेगा, पिच मुझे भी देना औरों पड़ेगा. को भी देना पड़ेगा. या So that's कहीं ना true. कहीं पिच देते हुए एक्सपीरियंस काउंट जो है वो मुझे फायदा के लिए रह जाता है. मेंटर्स में आप अपना नाम दिखा सकते हैं अपने खुद के स्टार्टअप में. हमें को औरों को दिखाना पड़ता है. Yeah, That's so true. that is what I have gained from there. That is what I have taken from there. So अगर हम ये कहें कि आपने ACIC से क्या लिया, ओवरऑल एक्सपीरियंस ही इज द राइट वर्ड टू. Network experience. वो जो 90s बॉर्न चाइल्ड है उनके पेरेंट्स का मोस्टली एक पर्सपेक्टिव है कि नौकरी सेफ है, तू बिजनेस में मत जा. तो आप इस एज में इस एक्सपीरियंस के बाद यू जंप टू एंटरप्रेन्योरशिप, जो एक पर्सपेक्टिव हमारे मन में आता है, एक डर आता है, तो वो डर आपके मन में नहीं आया? मतलब यू मस्ट हैव अर्निंग गुड वाइल बीइंग अ डायरेक्टर एट CGC Landra. आई थिंक पर्क्स भी एक डायरेक्टर के अच्छे होते होंगे. कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द रेंज और द पर्क्स दैट you were receiving? Working as a director in a private institution, in a private company, you earn fairly well, जहाँ पे you can live a very comfortable life, and आपको एक अच्छी लाइफ, अच्छी किड्स की एजुकेशन के लिए it's enough money for that. ड्रीम लाइफ थी. Yeah, it was a very good smooth life going on, and so for this entrepreneurship journey, थोड़ा सा डर था, because आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं and you have a very stable life. My husband is also a businessman, तो एक अच्छी stable life थी हमारी.
एंड कहीं ना कहीं से ये थॉट आया, नहीं आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। और मैंने ये देखा है कि एक थॉट जब दिमाग में आ जाता है ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो थॉट है वो आपको छोड़ता नहीं है जुनून जल्दी। बन जाते हैं। Yeah, and that is what happened, where I was ready to face the challenge. I was ready to leave my good salary, and though it requires a lot of courage to do that, but my family supported me. मेरे family has supported me throughout my career, चाहे वो फिर मेरा working career हो, चाहे मेरा entrepreneurship journey है, and with the support of my family and friends, I'm here like working as an entrepreneur. So in your family, who was the first person you told and what was their reaction? My husband, and his reaction was, uh, think of it, थोड़ा plan कर ले, and we will talk about it maybe after 3 months, because एक होता ना कि ये एक अभी wave है, उतर जाएगा। Settle down and then we'll talk. या करेक्ट। एंड 3 महीने बाद आई वाज फिर सेम वही, आई वाज फॉलोइंग द सेम थिंग कि या आई वांट टू स्टार्ट माय ओन वेंचर। एंड देन ही आई हैड माय प्लानिंग इन माय हैंड, एंड एवरीथिंग वाज लाइक, एक प्लानिंग अच्छी की हुई थी विद द किस तरह से हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा, कितना टाइमलाइन चाहिए मुझे उस चीज़ के लिए। आई हैड एवरीथिंग प्लान्ड, एंड I'm being very serious. I presented a pitch to my husband, and after that, we thought, yes, let's do it, and this is what I actually wanted. Now I'm asking this question from the perspective of an entrepreneur, right? So you have gotten an idea, you have gotten your family with you. What's the next thing you did with your experience? ओके, सो एक तो सबसे पहले तो मुझे एग्ज़ाम क्लियर किया, वो वाला पेटेंट एजेंट लाइसेंस एग्ज़ाम आई क्लियर्ड। दैट इज़ अ लाइसेंस गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। I got that license, started attending the webinars, seminars, so that I'm more comfortable with what is happening in IP industry in India. And then मैंने एक सेटअप किया था जो कि मेरा प्लानिंग से पहला था, सेंटर फॉर बौद्धिक संपदा। वहाँ से भी बहुत हेल्प मिला। सेंटर फॉर बौद्धिक संपदा जब मैंने सेटअप किया, लर्निंग अबाउट IP, IPR, learning about IP strategies, and then I started with my entrepreneurship journey, जो कि initial start, it's very challenging. Every day was very challenging for me We because all can relate. या वी ऑल कैन रिलेट। जहाँ पे अभी आपने प्लानिंग भी करनी है, आपने ये भी देखना है कि काम एक एक हर एक के मन में डाउट है कि अभी नया क्या होगा। एंड देर आर सम गुडी गुडी पीपल हु ऑलवेज कम टू यू एंड से कि जॉब छोड़ के गलत किया, you know that, instead of just telling that it's a good step. So you need to face everything with a smile on the face, with the very stable attitude, and then I started with my entrepreneurship journey. Funding was an issue for me, and which I already had planned. And once I'm out of this ACIC rise, because now I'm on a break, I'll start applying for fundings for my own company and grants for my own company. So would you be applying through ACIC or any other incubator? I would be applying only for RAS Intellect Solutions, Through any incubator? through any incubator, or even as a private limited company, you can apply independently. Right. Yeah. कि अगर एक स्टार्टअप को आपकी सर्विसेज लेनी हो, कैन वी इवन अफोर्ड इट, एंड व्हाट ऑल सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस इन द मार्केट? Yeah. Abhinav, I will start with कि मैंने ये कंपनी क्यों स्टार्ट की है, because whenever being an entrepreneur, we start with any of the company. The first thing is कि हमारे को कुछ गैप लगता है सोसाइटी में, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से ही हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं। एंड आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, faculty, researchers, and when we talk about the invention, when we talk about the novelty in a startup, invention in a startup, कोई inventive step है, कोई inventive idea है,
उसकी प्रोटेक्शन का, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है आइडिया को, नोबडी इज़ अवेयर। अभी मे बी आईआईटी लेवल पे जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये नॉलेज होगी। बट अभी अगर आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी को देखिए या एंटरप्रेन्योर्स को भी देखिए, तो वहाँ भी उनको नहीं पता कि जिस तरह से हम एक रोड मैप बनाते हैं फॉर 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 द स्टार्टअप, यू नो, कि उसने कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। वी शुड हैव अ रोड मैप फॉर द आईपी प्रोटेक्शन एज वेल। आइडेंटिटी कैसे बचानी है? बचानी कैसे है, एंड दैट इज वेयर आई थॉट ऑफ दिस पेटेंट का, कि आई वुड गिव अ काइंड ऑफ अवेयरनेस टू एवरीबडी अबाउट पेटेंट फाइलिंग। इन्वेंटर क्या है और एप्लीकेंट क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो आप बताएंगे एक बार वो डिफरेंस हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा? या जस्ट वेरी ब्रीफली, अगर इन्वेंटर है दैट मीन्स यू आर इन्वेंटिंग दैट पर्टिकुलर आइडिया, क्रिएटर ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडिया, क्रिएटर ऑफ दैट प्रोटोटाइप। अगर हम कोई टेक स्टार्टअप की, टेक कोई इन्वेंशन की बात कर रहे हैं। बट अगर कोई एप्लीकेंट है तो जो राइट्स हैं पेटेंट के, वो अगर आप कमर्शलाइज करते हो, उसके रेवेन्यू जनरेशन का है, दैट टोटली लाइज ऑन द एप्लीकेंट, यू नो। एंड सो ये चीज़ें नहीं पता हैं लोगों को। एंड यहाँ से आई स्टार्टेड विद माई जर्नी, जहाँ पे अभी आई हैव माई ओन कंपनी। वी आर प्रोवाइडिंग द पेटेंट फाइलिंग फैसिलिटी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, आईपी फाइलिंग फैसिलिटी है मेरे पास। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग द कंसल्टेंसी and the capacity building programs for the students, for the startups, जहाँ पे उनको हम aware कर सकें about how to protect your invention, how to protect your startup moving forward. And that's very needed in the market as well. And I think you are also mentoring institutions about the IB policies as well. Because you have been the leader of an institution. So you know what institutions are lacking and you can provide that information to institutions, organizations as well. So when it comes to IB protection and if a startup, for example, कहीं पे भी कोई startup घर बैठ के मैंने कोई नया आइडिया सोचा, मैंने फंडिंग के लिए अप्लाई किया, या फिर जैसे शार्क टैंक वगैरह पे होता है कि कोई स्टार्टअप आया, उसकी फिर कॉपीज़ बन गई, या फिर उसका आइडिया ले लिया, या फिर कोई नया इन्वेंशन था जो अभी तक सेफ नहीं किया उन्होंने, प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको ले लिया। तो वो चीज़ माइंड में रखते हुए एक स्टार्टअप आपको रीच आउट कैसे कर सकता है? एंड आर योर सर्विसेज, अगेन आई आस्क दिस, आर दीज अफोर्डेबल फॉर स्टार्टअप्स और इज इट लाइक बियॉन्ड आर रीच? स्टार्टअप्स जो सर्विसेज हैं, आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन फर्स्ट। दे आर अफोर्डेबल, दे आर इकोनॉमिकल, एंड फॉर अ स्टार्टअप it's very easy to pay, because I know the startups, the first जो challenge रहता है, I have worked with the ideators, जहाँ पे first challenge is funding. तो एंड एक गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, SIPP स्कीम। तो हम कोई स्टार्टअप की अगर पेटेंट फाइलिंग कराते हैं तो SIPP स्कीम के अंडर कराते हैं, वेयर दे गेट द Subsidy. रीइंबर्समेंट, सब्सिडी, व्हाट यू कैन से, रीइंबर्समेंट भी हो जाता है वहाँ पे। देन so when we are working with institutions, when we are working with the startups, first thing I take into consideration is giving them an honest opinion about everything. अगर उनके स्टार्टअप का नॉवेल आइडिया है, नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। एंड आपको कहाँ पे, किस स्टेज पे आपको कॉपीराइट कराना है, किस स्टेज पे आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है। यू हैव टू गो फॉर पेटेंट फाइलिंग। इफ़ इट इज़ अ प्रोडक्ट, जो कोई स्टार्टअप ने कोई प्रोटोटाइप बनाया है, कोई प्रोडक्ट बनाया है, यू हैव टू गो फॉर डिज़ाइन फाइलिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर इन्वेंशन। एंड अगर एंड देन बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप कल्चर, तो कहीं ना कहीं पे मेंटोरशिप भी साथ चलती है। व्हेन आई टेल देम अबाउट द पेटेंट फाइलिंग, आई आल्सो टेल देम अबाउट लॉट ऑफ स्कीम्स वेयर दे कैन अप्लाई फॉर। एंड कुछ स्टार्टअप्स हैं हु आर वर्किंग विद इन्वेस्टर्स,
एंड तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ कुछ एमओयूज़ बनाते हैं, उसके लिए कुछ एनडीएज़ क्रिएट होते हैं वेयर आई आल्सो गाइड देम कि आपने ये एमओयू अगर बनाना है, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर एमओयू यू हैव टू फाइल योर पेटेंट। तो these are the things जहाँ पे we are helping the startups. Talking about the faculty की अगर मैं बात करूँ, तो फैकल्टी दे कम टू अस कि हमने पेटेंट फाइलिंग करनी है, तो व्हेन शुड वी गो फॉर पब्लिकेशन? तो उसमें एकेडमिशियन एक बैकग्राउंड से या तो समवेयर माय एक्सपीरियंस हेल्प्स देम बिकॉज़ आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट फ्रेटर्निटी। तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड हाउ आई कैन हेल्प देम विद द पब्लिकेशन बाय गिविंग देम द प्रायर आर्ट का कुछ उनको बता दिया, दिस इज़ व्हाट योर इन्वेंशन इज़ ऑल अबाउट, एंड उसके बाद उसका पेटेंट फाइलिंग पहले होना चाहिए या पब्लिकेशन पहले होना चाहिए, गाइड किया उनको इस चीज़ के लिए। इफ़ एनी फैकल्टी वांट्स टू डेवलप अ प्रोडक्ट, कोई प्रोटोटाइप बनाना है, मेंटरिंग देम फॉर लाइक किस तरह किस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू शुड हैव योर प्रोटोटाइप रेडी, एंड दीज आर द स्कीम्स अवेलेबल जिसके साथ आप फंडिंग ले सकते हो। सो इट्स नॉट ओनली अ काइंड ऑफ आईपीआर कंपनी जो कि एक हम बोलेंगे कि एक बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव से एक आईपीआर कंपनी खोली जाती है, वो नहीं है। यहाँ पे यू आल्सो गेट द मेंटरिंग, you also get a lot of support. Yeah, exactly. And I would not like to name any startup because this is a social media, but yeah, हमारे पास अभी एक I have one client जो कि we are working on a trade secret for that. दैट्स वेरी नाइस या तो लोगों को नहीं पता होता है कि एक स्टार्टअप है, किस चीज़ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पेपर वर्क चाहिए क्या पेपर वर्क चाहिए, एंड वहाँ पे वी कैन गाइड देम एंड वी कैन गिव देम फुल सपोर्ट सो दैट इन फ्यूचर व्हेन देयर प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इनटू द मार्केट, तो उनको कोई किसी भी तरह का कोई इशू ना आए उस टाइम पे। तो गाइस आप हेल्प लेने आएंगे आईपी में, बट अंडर वन अम्ब्रेला यू विल गेट mentorship, you will get assistance for grants, guidance for pitching to investors, and anything that's possible and available in the startup ecosystem you will get under one roof, right? Yeah. So जैसे आपने बताया कि आप स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं और उनको सब कुछ एक ही अम्ब्रेला के अंडर मिल जाता है, क्या आपके पास इनक्यूबेटर्स भी आ रहे हैं सपोर्ट के लिए? मतलब आर यू साइनिंग अप विद सम ऑफ द इनक्यूबेटर्स एज वेल, और आर यू जस्ट फोकसिंग राइट करंटली ऑन द स्टार्टअप्स? I am focusing on startups right now for the reason I'm already associated with an incubator. But yeah, there are a lot of incubators जिनकी अभी hand holding में I will be acting as a mentor or a part of the advisory board. Got it. So from this complete journey, before we wrap up the podcast, ma'am, what's one thing you would like to put as the title of your autobiography? I think it would be maybe experience and resilience. Experience and resilience. Yeah. I think that's perfect, ma'am. And let's wrap up the podcast with a rapid fire round. So I'll ask you 10 questions, and I'll request you to answer it. The question's answer will be in one word. Correct. Okay. So let's start with our first question. So as I asked the autobiography question, one word that defines your entrepreneurial journey. Resilience. Resilience. Okay. Your biggest inspiration in life? My father. Your father. Innovation or execution? What's more important? Innovation with execution. Okay. One quality every founder must have, apart from resilience. Never say no attitude. Okay. The best decision you have ever made? Being an entrepreneur. That's very nice. A startup you admire. You don't need to name it. You can tell कि किस technology में है वो. Drone technology. Drone technology में. When you think of any idea, or when you think of a business, what's the best time personally for you to ideate? Morning or evening? Morning. And if not
an entrepreneur, uh, which sector, apart from incubation, like apart from the startup ecosystem, which sector you would imagine yourself in, if not this sector? I think I would have been a researcher or working with any academic institution only. As a lecturer, as a teacher? Yeah, as a teacher. Uh, your go-to stress buster? Workout. I go for swimming. Acha, you swim at this age as well? Yeah. That's very nice. That's something we all can learn. Matlab, she's doing, she has been taking care of her family. She has been an amazing mentor and an amazing entrepreneur, like we can see. And then she's fit. Thank you. And last question, ma'am. One word for your life's mission. Purpose. Purpose. Thank you, ma'am. It was amazing speaking with you, and I think we all learned a lot. And thank you for being part of our journey. Thank you for being part of our incubator series. Thanks again. Likewise, Abhinav, it has been pleasure interacting with you and looking forward for more podcasts with you. Thank you so much. Thank you. Arpa.